Hi, good morning, my dears. Good morning, everyone. Just wait for a minute. We all are getting little bit poor connection. Okay, we all are facing with little bit poor connection. Just wait for a minute. We all are getting admitted in online session. Mute your video, mute your videos, mute your audios on your video, mute your audio and unmute your video, everyone. Else he will not be the part of the online session. Immediately join the session. Now all have joined here and I am going to start my session. Everybody is ready to learn the difficulties faced in your chapter Python. Okay. अगर कोई सवाल आप लोगों का शेष रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे. आई होप clear. Changan, do you have any question? Do you have any question? No questions. Okay. So who will tell me the name of next chapter? Because I don't have any sort of book. I teach thoroughly to my students. So just inform me about your next chapter. Then we are going to have a splendid startup. Okay. And we will definitely learn more and more about that session. So immediately confirm me, Princey. Next chapter name. Chapter is yours and explanation is mine. Packages. Clear? Sanchita, chapter name. Office package. Office package. Very good. Very good. Very simple topic. Today we are going to start.
and the topic name is what? Office package. Have you heard the name office package ever been before it? क्या कभी आप लोगों ने इससे पहले उस चैप्टर का नाम सुना है क्या? ऑफिस पैकेज. वेरी सिंपल टॉपिक. Introduction is yours. Okay. Introduction to office package. Now come to the point. Very beautiful chapter name, and the very good nice chapter, and the nice chapter name is what? Office package. Clear? Got it? Office package. So write about it. It is a general purpose. It is a general purpose. Sorry, it is a general purpose packaged software. Okay, it is a general purpose packaged software using which anyone can perform, okay, some common operations. Anyone can perform some common operations such as letter writing, application writing. Most important is what? Mail writing. Okay, next one is what? Book composition. Okay, book composition. Mark sheet preparation. Okay, PPT, I mean presentation creation. Okay, databases, etc. Okay, now listen to me about it. What did I say? मैंने आप लोगों को क्या बताया भाई? मैंने ये कहा कि ये ऑफिस पैकेज जो है एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. क्लियर है? क्या है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. गॉट इट? अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने जनरल टास्क, जैसे सपोज यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं डेफिनेटली. अगर आप अपने मित्रों को ऑफिशियली या अनऑफिशियली, जो लेटर्स का टाइप है, आप लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो लेटर राइटिंग की आवश्यकता पड़ती है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड पॉपुलर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट इज व्हाट? ईमेल. क्लियर? अगर आपको ईमेल राइटिंग के लिए भी कुछ ऑप्शंस, ईमेल राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए भी, सपोज Sanchita is a writer and she writes something, book, novel, magazine, etc. Okay, so which application would she use? Definitely she will use what? Office package, definitely. And there is a kind of the software, and that is called word processor. Okay, that mostly cooperates the learners and the users to get a rectified document. कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने कहा क्या कि जब हम लोग कहीं भी बड़े होंगे, काम करेंगे, जब काम करेंगे कहीं भी, तो हमें कहीं ना कहीं छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ती है.
तो मैं उस परिस्थिति में क्या करता हूँ, अपने सीनियर को एप्लीकेशन देता हूँ, ठीक है, कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। ये हमारे रियल लाइफ का ही एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि मैं आपको चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ आपको, नहीं। मैंने बताया क्या कि ये सब सारे के सारे क्या है हमारे, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, मेल राइटिंग। अब ये बुक कंपोजिशन कोई जरूरी नहीं कि मैं राइटर हूं तभी अपनी किताब भी लिख सकता हूँ, अपने मन की बात, अपनी बायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं, खुद से लिख सकता हूँ, दूसरे की लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मार्कशीट प्रिपरेशन है। मार्कशीट को भी जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, आप लोग के मार्कशीट का प्रिपरेशन होता है, तो वो कहाँ होता है, वो ऑफिस पैकेज का ही एक पार्ट है, उसमें हम लोग करते हैं। उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि उसकी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसलिए हम उसको, मैं आपको इतने सारे टास्क में बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग करके, जैसे आप हम लोग आजकल देखते हैं क्या कि हम लोग सभी आदमी पीपीटी का नाम सुने होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। वो कहाँ मिलता है, मुझे ऑफिस पैकेज में मिलता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्रिएशन जो होगा वो मिलेगा, डाटा बेसिस का क्रिएशन कहाँ मिलेगा, ये सब जनरल पर्पस है, ओके। डिस्पाइट द टाइप ऑफ फॉर्म, डिस्पाइट द टाइप ऑफ यूजर, anyone can use it everywhere to complete his or her जनरल पर्पस टास्क। कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, इसके लिए तो अपने दैनिक जीवन के से संबंधित कुछ कार्य हैं, उस कामों को करने के लिए ये ऑफिस पैकेज हमारा हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर है। सबसे पहली बात है कि आपको हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे कि सर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहली बात तो हमको पैकेज सॉफ्टवेयर जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम लोग जब चर्चा करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं, तो हम लोग को पूरी बात समझ में आ जाएगी कि उसमें से पैकेज सॉफ्टवेयर भी एक है हमारा। क्लियर है, तो पहला है हमारा क्या, एक होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, और तीसरा होगा हमारा क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स की चर्चा हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये है पहला हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके। पहला क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। गॉट इट। दूसरा क्या है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड वन इज व्हाट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, utility software, okay. So there are three kinds of software. Number one is what, system software. Number two is what, and number three is what, okay. So there are three kinds of software. uh, Now next one is what, we have one operating system, okay, operating system. One type of software is what, operating system, okay, operating system. And second one is what,
operating system. Next one is what? Language translator. Okay, language translator is another kinds of software. Okay, language translator. And our next software is application software, and application software is also of two kinds. Now look at here. Application software is package software. Got it? Package software. And another is what? Custom software. Okay. Next one is what? Now look at here. Antiviruses. And next one is drivers. Now come to the point. This is also a kind of software. This is also kind of software. So this is your complete construction of your software. Okay. So Office package is what? Is a part of, you can see here. Now look at here. So it's a very simple task. And your Office package is a kind of what? Package software. Office package is kind of what? Package software. Office package is a kind of package software. Got it? तो हमने बताया क्या कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ऑफिस पैकेज के बारे में बताना था। तो मैंने आपको बताया कि ऑफिस पैकेज आया कहाँ से। तो हम लोग जब तक इसका क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे, इसका वर्गीकरण नहीं देखेंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा कि सॉफ्टवेयर किस कहाँ से इसका ये किस सेक्शन का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो कहा क्या कि पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्लियर। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और तीसरा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्लियर। फिर कहा कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन? कहा गया कि सर पहला है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और दूसरा क्या है मेरा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? कस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है? तो पैकेज सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो हमारा MS ऑफिस पैकेज है, जिसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम कस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताएंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद क्या कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया क्या कि ड्राइवर्स
और एंटीवायरसेस, जितने भी एंटीवायरसेस होते हैं ये सारे के सारे हमारे लिए क्या है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमें हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं होते, ये सिस्टम के प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, कस्टम सॉफ्टवेयर नाम से कैसा लग रहा है कि पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर। ध्यान से देखें इसको, कस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल चीज है, मैं आपको सबका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, आप लोग एक बार में समझ जाएंगे। जैसे कंगन की दुकान है, कंगन की दुकान है और कंगन की दुकान है, सपोज ज्वेलरी की दुकान है इसकी, है, तो डेफिनेटली इनके लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाएगा वो सिर्फ इन्हीं के कंप्यूटर पे इन्हीं के बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? अब संचिता दीदी का जो है वो मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप है तो मेडिकल शॉप वाले के ज्वेलरी से क्या लेना देना, ये सॉफ्टवेयर वहां पे ज्वेलरी का हॉलमार्क का मांगेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, यहाँ पे इनके पास मेडिसिन का नाम होगा, सबका अपना अलग अलग होगा। क्लियर है? तो ऐसे मैंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, अरे किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा आपने, रेलवे का नाम सुना है, बैंक का नाम सुना है, पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है ना भाई, अपना विद्यालय का नाम सुना है आप लोगों ने। क्लियर है? तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अगर ये सॉफ्टवेयर बैंक में लगेगा तो वहां काम नहीं करेगा, करेगा क्या? बैंक का सॉफ्टवेयर रेलवे रिजर्वेशन में काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर पोस्ट ऑफिस में काम करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना? तो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या पर्सनल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं उसे हम लोग। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर क्या हुआ, ये जनरल पर्पस, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारा क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। लोग क्या यार, मैंने क्या बताया आपको कि सर ये जनरल पर्पस पैकेज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जनरल पर्पस, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, जहां चाहे जब चाहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका इस्तेमाल करके वो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को, दैनिक जीवन के जो उसकी गतिविधियां हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो डेफिनेटली इसके लिए हमें पीपीटी तैयार करना पड़ता है, तो हम इसमें ही कर सकते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर में ही करेंगे। आपको अपने घर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना है तो डेफिनेटली आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप पैकेज सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करेंगे वहां पे, उसमें हम लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको लेटर लिखना है तो किसका प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि आप वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग करेंगे। वहां पे क्या होगा, आपको जैसे कोई गलत वर्ड टाइप करेंगे आपको स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो स्पेलिंग मिस्टेक भी बताया जाएगा, आपका किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक होगा, सिंटैक्टिकल मिस्टेक होगा, वो भी बताया जाएगा आपको। ये दीज टू कलर्स आर इंडिकेटेड इन टू डिफरेंट कलर्स। ओके, सो मैंने क्या बताया आप लोगों को, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसमें से हम लोगों को पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो चलिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा, पैकेज सॉफ्टवेयर पढ़ा, लेकिन फंडामेंटली मुझे तो ये तो जानना है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए, ओके, नाउ राइट अबाउट सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग बॉटम टू टॉप अप्रोच चल रहे हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई पहले हम लोग को जो दिया था वहां पे चले, लेकिन इसका रूट क्या है, रूट वर्ड क्या है, रूट कहाँ से हम लोग इस पे वर्क करते हैं। सो फर्स्टली राइट अबाउट सॉफ्टवेयर मैन। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकते। हाँ, सॉफ्टवेयर, कंगन जी बोलिए। नॉट अवेलेबल वीडियो ऑफ। The software is that part of the बस, software is that part of the computer यस, that is not is touchable and it is used to टचेबल, it is ओके, used to write something isn't touch it is not touchable. Sir, can I say? ओके, या श्योर 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 संजीता, श्योर। Logical component of computer is called software. स्मार्ट, लॉजिकल कंपोनेंट। देखिए भाई, मैंने आपको बताया था जब फंडामेंटल जब मैं पढ़ा रहा था प्रीवियस क्लास में, आप लोगों ने शायद आपने पढ़ा नहीं या फिर मेरी घंटी आप लोगों में थी नहीं। तो देखिए दो कंपोनेंट की बात होती है, एक बात होती है हमारे फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा लॉजिकल कंपोनेंट। सो बी कंसंट्रेट ओवर हियर। ओके, कंसंट्रेट ओवर हियर मैंने क्या बताया कि सभी आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। मैंने कहा गया कि भाई हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक क्या है हमारा फिजिकल, दूसरा क्या है हमारा लॉजिकल। आशुतोष जी ऑडियो पे रहेंगे, हाँ सोए रहिए, ठीक है। मैं भूत को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से काला काला स्क्रीन दिख रहा है, मैं भूत को पढ़ा रहा हूँ, इडियट की।
ओके, तो मैंने क्या कहा कि फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल का मतलब होता है कि दोज आई मीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सीधी सी बात है, फिजिकल का मतलब होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, क्लियर है। और लॉजिकल का मतलब क्या होता है, लॉजिकल का मतलब होता है कौन सा पार्ट, सॉफ्टवेयर पार्ट, सीधी सी बात है। हमने आपको पहले बताया था कि हम फिजिकल मीन्स हार्डवेयर और लॉजिकल मीन्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो बनता है, सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया जाता है वो कंप्लीटली लॉजिक पे, आपके कंप्लीटली आपके लॉजिक, आपके मेंटल एबिलिटी, आपके थिंकिंग एबिलिटी पे पता चलता है। वैसे आशुतोष जी को अच्छा से पता है कि कैसे काम करता है, कितना दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, है ना आशुतोष जी, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इनको पता है कि एक्चुअली ये थोड़ा पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो इनको मालूम भी है ना, कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में कितना प्रोग्राम कितना दिमाग लगाना पड़ता है हम लोग को। लेकिन फिजिकल कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो कहा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है सर, ये हमारा लॉजिकल कंपोनेंट है। ओके, जिन लोगों ने नहीं जाना है, नहीं नोट कर लीजिए, लॉजिकल कंपोनेंट। संचिता बहन थैंक यू सो मच। लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर is called software. Got it? Logical component of computer is called what? Software. Okay. It is responsible. It is responsible. It is responsible for its what? Functionality. Got it? It is responsible for its functionality. मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा है कौन, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फंक्शनलिटी के लिए। मतलब क्या फंक्शनलिटी, मुझे समझ में नहीं आया। आपके कंप्यूटर में जितने सारे एप्स होंगे आप उतने ही अधिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपके कंप्यूटर के फंक्शनलिटी को बताता है। मतलब आपके कंप्यूटर में जितने ज्यादा अधिक सॉफ्टवेयर होंगे आप उतना अधिक काम कर पाएंगे, सीधी सी बात है ना, वो तो सिंपल सी बात है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फंक्शनलिटी। कंप्यूटर की फंक्शनलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन उसका फिजिकल लेआउट आई मीन उसके स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट शेप एंड साइज में हमारे पास ये सब चीज अवेलेबल होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हमारा छोटा से छोटा साइज में भी आप आम टॉप देख रहे हैं, लैपटॉप है आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सब चेंजेस कैसे हुआ, ये सब चेंजेस इसके हार्डवेयर में चेंज करने से हुआ है, न कि सॉफ्टवेयर में चेंज करने से हुआ है। सॉफ्टवेयर में चेंज करने से क्या होता है, उसकी फंक्शनलिटी चेंज होती है, क्लियर है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट वी आर आल्सो गोइंग टू ज्वाइन आवर क्लास टुमारो। हम लोग कल भी इसी समय पे क्लास ज्वाइन करेंगे। कोई दूसरा क्लास नहीं है ना, या कोई दूसरा क्लास है इस पे? संस्कृत है आचार्य जी। ओके ठीक है, संस्कृत क्लास है। संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ क्या अभी तक? कंप्लीट है। अच्छा चलो फिर संस्कृत पढ़ लो, हमारा कोई दिक्कत नहीं, मेरा सिलेबस भाई आपका अप टू डेट मिलेगा और सर मैं परीक्षा से पहले आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल थोड़ा मैं बिजी हो गया था इसलिए क्लास नहीं हो पाया था। ओके नो प्रॉब्लम, तो हम लोग अपने अगली क्लास का इंतजार करेंगे, लेकिन अभी चलिए पढ़िए। ओके तो सॉफ्टवेयर समझ में आ गया भाई। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि लॉजिकल कंपोनेंट, लॉजिकल कंपोनेंट का मतलब दिस इज टोटली द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। या किसी भी व्यक्ति की क्या थिंकिंग एबिलिटी होती है। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बहुत सरल काम है, तो नहीं होता उतना, लेकिन फिर भी ये सरल काम है, आप भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते गंगा जी ये दिस इज द चाइल्डिश डेफिनेशन व्हिच कैन नॉट बी टच, व्हिच कैन नॉट बी, ये सब टचिंग वचिंग क्या, सॉफ्टवेयर को टच थोड़ी करना है ना। वो तो हमें वही लॉजिकल कंपोनेंट, बी स्मार्ट एंड यूज technical words. Okay, logical components of computer is called software. It is responsible for its functionality. तो ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनलिटी को डिटरमिन करता है, बताता है जितने अधिक सॉफ्टवेयर होंगे उतना अधिक काम होगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को पहला जो पढ़ना है वो है हमारा क्या, वर्ड प्रोसेसर। पहला आपका जो है देखेंगे। अब सबसे पहले हम ऑफिस पैकेज की बात कर दें। ऑफिस पैकेज बहुत सिंपल सा हमारा यू कैन से दैट कि ऑफिस पैकेज जो हमारा है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर, थोड़ा हम उसके बारे में जाने, ठीक है।
कि ऑफिस पैकेज जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं दिया है आप लोगों में, थोड़ा थोड़ा दे दिया है। ओके, so first one is I am going to tell you. So you can say that the components of your office package, or you can also say that, no problem. Number one is what? MS Word processor. You can say that Word processor. Number two is what? Spreadsheet. Number three is what? PowerPoint. Number four is what? You have also studied in class 7th. Database. Okay, database, that is what? MS Access. We have studied in the previous class. I hope it's in your mind or not, I don't know. You have forgotten totally about it. Okay, so database, and very important point, and that important point is what? That is available for our email purposes. And next one is what? Outlook. Next one is what? OneNote. Clear? So all these things are available in your office package. It means once we are going to learn what? Office package, definitely we will learn what? All these things there, because all these things are inculcated. All these things are inculcated in your office package. Well, listen to me, man. आशुतोष जी, got it? मेरी बात समझ में आई क्या? नहीं आ रही है? क्या है ये सारे के सारे चीज कहाँ मिलते हैं मुझे भाई? ये सारे के सारे चीज मुझे मिलेंगे ऑफिस पैकेज में मिलेंगे. Okay, so these all are the components of your office package. I hope you have already studied MS Access in your class 7th. Okay, not studied well, वहां पे अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा, समझ में तो आया नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्लास 10th में भी पढ़ना है. बी श्योर अबाउट इट. क्लास 10th में भी पढ़ना है MS Access डाटाबेस जो आपका दिया हुआ है, ये क्लास 10th में भी पढ़ना है. तो ऐसा नहीं सोच लेंगे कि अगर हमने 7th में नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया, मेरी पीछा छूट गया. कोई दिक्कत नहीं है मैन, आगे पढ़ना है, घबराने की कोई बात नहीं है. ओके, गॉट इट? नोट डाउन इट. नोटेड? नॉट नोटेड. तो हम लोग को शुरू करना है अभी क्या? वर्ड प्रोसेसर. शुरू करें? आर यू रेडी एवरीवन? रेडी? Yes. Yes, only one candidate is awaking and rest are sleeping. Very good. One is awaking, rest are sleeping. Word processor. So write about it. Introduction to word processor. Word processor. Okay. Now listen to me, man. It's a very simple thing, and I hope everyone can understand. Everyone can understand. And I hope you all are able to understand it. You all are ready to understand it. Okay. So who is there who can tell me the definition of word? Ashutosh ji, you are sleeping there. Ashutosh, are you sleeping there? Be online. No, sir. Yes. Just tell me about word. Word. What is word? A word processor is a type. No, I'm not asking. I'm just listen to the question. Listen to question, please. I'm not asking the word processor. I'm just asking about word. What do you mean by word? Hurry up. It is a group of alphabets. Group of alphabets. Okay.
Now who can next? Kangan. Can I speak? Yes. You can speak. A meaningful group of letters is called word. भाई ग्रुपिंग तो होनी चाहिए लेकिन उसके मीनिंग भी कुछ होने चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, स्मार्ट. लव कुश जी केवल देखते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं सर. लव कुश जी, चलिए अच्छा है सर, आप केवल देखिए सही. ठीक है, तो जी भाई सर. आवाज सुन पा रहे हैं ना आप? यस सर. ओके. ऋषभ जी सोए हुए हैं क्या? ऋषभ जी, हर्ष जी, ये लोग सो रहे हैं. इन लोगों को कल से मैं ज्वाइन ही नहीं करने दूंगा, आउट कर दूंगा वहां से. पलक, आवाज सुन पा रही हो? तो भाई मैं आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ा, मैं आपको ये कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा रहा हूँ. यूँ समझिए कि बचपन में आपको आपके सर ने, आपके टीचर ने, आपके गुरुजी ने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें सबसे पहले लेटर पढ़ाया होगा, अल्फाबेट पढ़ाया, अल्फाबेट के बाद वर्ड लिखना सिखाया होगा, वर्ड के बाद आपको फिर आगे अपना सेंटेंस बनाना सीखा होगा, ट्रांसलेशन करना सीखा होगा, व्हाटएवर, आई डोंट नो. ओके, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर वर्ड किसे कहते हैं, राइट? तो वर्ड जैसा कि कंगन ने बताया, आशुतोष जी ने भी अच्छा बताया, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इनको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, राइट? ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट gives complete meaning is called word. ओके, लेकिन मुझे तो पढ़ना था वर्ड प्रोसेसर. पढ़ना है ना मुझे. ओके, तो भाई आप इसको, जब आपने वर्ड को पढ़ लिया तो वर्ड प्रोसेसर भी पढ़ लेंगे. बहुत सिंपल है ना. मैंने कहा क्या कि वर्ड प्रोसेसर, भाई जब मैं एक वर्ड लिखता हूं तो क्या हो सकता है कि वो उस वर्ड का मीनिंग गलत हो सकता है, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता हो. ऐसा हो सकता है कि उस वर्ड को, है ना, मैं गलती स्पेलिंग लिख देता हूँ. मेरी ये गलती, मेरी आदत है, मेरी आदत खराब है, मेरे से गलती हो जाती है. ठीक है, तो चलिए वर्ड प्रोसेसर. तो वर्ड प्रोसेसर आई मीन ये सॉफ्टवेयर दैट रेक्टिफाइज, ये राइट डाउन वर्ड, software that rectifies the words is called what? Is called word processor. ठीक है भाई, मैं जब शब्द लिखता हूँ, वर्ड लिखता हूँ, तो क्या हो सकता है, वो गलत हो सकता है ना. तो उसको जो सही करेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? वर्ड प्रोसेसर कहेंगे. ठीक है, आज के लिए सिर्फ जस्ट डेफिनेशन, इसके बाद में थोड़ा हम लोग आगे पढ़ेंगे. बस आज के लिए सिर्फ इतना ही. आप सभी आदमी इसको पढ़ कर आएंगे, याद कर आएंगे. मैं अगले क्लास में पूछूंगा, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा. ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एवरीवन. तो सभी आदमी इसको पढ़ कर आएंगे.